Hi everybody. So today I'm going to revise it fastly. So as we know that JNK Reorganization Act having a lots of sections are there, and between them we are going to understand with this we all are learning these sections one by one. So first of all, section 1 is talking about the short titles of the act. In this act we have many of the short titles that itself the act name was in JNK Kari Organization Act 2019, that is short title. Okay, so section 2 is talking about the definitions. How many the words are there are using in this, like assembly constituencies, like delimitation, agmut cadre, and also many of the words are using in this act. The definitions are talking about the meaning of these words in this act are using. Okay, so section 3 is talking about the Ladakh as in UT rahegi. Then with this, no legislature is there, no any legislative assembly, and no and councils. Okay, here we have Kargil and Leh districts. Two districts are there. As we all know that 22 districts are there in Jammu and Kashmir before this act. When this article 370 was enacted, that's why we have two districts are going to the Ladakh. Okay, so here we have JNK with the legislature and 20 districts. Section talking about this. Section 5 is talking about the governor of JNK. Before it was not enacted, there was a state, and state having a governor, and with this we have a lieutenant governor in the JNK as an UT of Ladakh and JNK. Okay, section 6 is talking about the state entry 15 delete. It means that our Jammu and Kashmir was renumbered as in UT. Okay, so it was counted in the state list. There is the 29 states are there. When it was eradicated from that list, the 15th number of our JNK was written in the constitution. So that was saying that state entry was 15 deleted, and it was entered into the list of renumber किया गया 15 to 28. Then we have 28 states, and we have 8 union territories, as we all know. Okay, so Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu was merged into one UT. So that we have the data in this, that 8 UTs and 28 states, and we all know that um, 8th union territory was Daman and Diu Valley. Okay, so section 7 is also in this process. Section 9 is talking about the Rajya Sabha. How many members are there? MPs are there. That is Ghulam Nabi Azad, and also 3 or more of it, and 4 members only represent Rajya Sabha from the JNK. Okay, so this act is talking about, section 9 is talking about the Rajya Sabha के members, 4 members होंगे. Section 10 is talking about Lok Sabha के member, 5 seats only there in JNK and 1 seat for Ladakh. Okay, so that is the spirit. Section 11 is talking about election commission, same in both UTs. As we all know that if there is a general elections happen in this October 2022. Okay, so there will be an election commission who will who will announce the party's name, who will opposing party, who will ruling party will do this elections, and election commission will be same in UT Ladakh or Jammu and Kashmir, as we all know. Section 12 is talking about the provision of the MPs in Lok Sabha. In this provision of member of parliament was in who were in the Lok Sabha, right? So if they want to alter, they can alter. If they don't want to alter them, and they stay there and do their own job. Okay, so that is the provision for the MPs. Okay, लोक सभा में जो भी MPs हैं उनको अगर वो चाहें, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाहे तो अपने एरिया को अल्टर कर सकती है, अपनी बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकती है, अपने नाम को चेंज कर सकती है, परंतु
इस प्रोविज़न में यही बताया गया। सेक्शन 13 इज़ टॉकिंग अबाउट JNK में यूटी रहेगी, और ये यूटी किस तरह से बनी गई है, जो JNK यूटी एज एन पुडुचेरी मॉडल, पुडुचेरी एज एन यूटी, जहाँ पे हमारा क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, विद दैट वी हैव यूटी रहेगी, एंड उसमें लेजिस्लेचर रहने वाला। ये इसका मॉडल उठा के हमारे JNK में फिट किया गया। सेक्शन 14 इज़ टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 14 बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है, कितनी सीट्स रहेंगी, SC/STs का कितना रिज़र्व सीट्स है, कितना विमेन कर रही है, कितना हमारा लेजिस्लेटिव रहेगा, किस में रहेगा, कितने मेंबर्स रहेंगे, कितनी सीट्स रहेंगी, POK के लिए क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें जो है सेक्शन 14 बताता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज टॉकिंग अबाउट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूटी के बारे में, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की पूरी जानकारी यहाँ पे। एज़ वी ऑल नो दैट लद्दाख में तो ये लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो जो भी कारोबार है, काम है, MLAs हैं, जो भी हैं, वो यहीं पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं उनके लिए। सो वी हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया गया है यूटी में, JNK में। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी JNK में, दैट वी हैव 107 जो है सीट्स रहने वाली हैं। POK के लिए वैकेंट रखी गई हैं 24 सीट्स जो हैं। डीलिमिटेशन जो है दैट इज़ बाउंड्री डिमार्केट की जाएगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के द्वारा। और किस एक्ट के तहत अमेंड किया गया है, 3rd शेड्यूल को अमेंड किया गया है। As we all know, this act contain 5 schedule itself. So here we have the delimitation को किस तरह से फिर से अमेंड किया गया 3rd शेड्यूल में। Then we have seats reserve हैं ST और SCs के लिए, and also we have the seats reserve for seats reserve तो रहेंगी, पर किस हिसाब से, that 2011 का सेंसस से रिकैलकुलेट करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है, उतने हिसाब से ही यहाँ पे जो है वो डिलिमिटेशन या सीट्स रिजर्व की जाएंगी। ओके, सो सेक्शन 15 इज टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ औरत, सॉरी ठीक है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है लेजिस्लेचर में। LG को लगता है कि अगर वो होनी चाहिए तो होनी चाहिए, 2 औरतों को ही यहाँ पे अलाउड हैं, 2 women's are only allowed to be and participate or the taking the membership of the legislative assembly. Next we have section 16 is talking about the qualification of legislature. For example, if you want to become an MLA, so you have to having the capacity, having the qualifications, like you are not bankrupt and you having no सदस्यता आपकी दोनों पार्लियामेंट्री नहीं होना चाहिए, आपको एक ही मेंबर होना चाहिए, आप 25 साल से कम होने चाहिए, दैट इज़ द क्वालिफिकेशंस मेनली। सेक्शन 17 इज टॉकिंग अबाउट द टर्म एंड ड्यूरेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एज यू कैन सी दैट आफ्टर द 5 years you have to elect, okay, the general election was there, and after 5 years there is the Lok Sabha elections and also the legislative assembly. There is an section 17 is talking about the duration. So section 18 is talking about the sessions taken by the the lieutenant governor of the UT. ओके, तो LG को कब मीटिंग लेनी है, कितने टाइम में लेनी है, कब डिसकंटिन्यू करने हैं, कब इसको चलाना है, कितने टाइम पीरियड में हो जानी चाहिए, सभी चीज़ें जो है सेक्शन 18 बताता है। कब तक चलेगा, कब रुकेगा, किस तरह से जो है LG को मीटिंग लेनी है 6 महीनों के अंदर अंदर 2 बार मीटिंग लेनी है कम से कम। डिसकंटिन्यू डिसॉल्व वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हाउस में इसको ही क्या करना है, मीटिंग्स की बारे में बात की गई है कि सत्र किस तरह से लेने हैं इसने। तो सेक्शन 19 इज़ टॉकिंग अबाउट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ऑल वी नो दैट जब विधानसभा होगी तो वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कौन चूज़ करेगा, कौन उनको बोलेगा कि सत्र लीजिए या नहीं लीजिए, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है 19 सेक्शन जो है वो। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो MLAs होते हैं उनके अंदर ये पावर होती है कि वो कौन किसको बनाए अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर वहाँ पे काम कर सकता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे
बताई गई हैं। तो सेक्शन इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पीकर के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकर को रिमूव करना है, आपको पसंद नहीं आ रहा स्पीकर, तो उसको 14 दिन का एटलीस्ट नोटिस देना चाहिए आपको, दैट इज़ रिकमेंडेड इन द, ठीक है। सेक्शन 20 इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पीकर की जो है, स्पीकर अगर चाहे तो अपना ऑफिस रन कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं, ठीक है, वो उसके ऊपर है, उसका मर्जी है वो इसको रेजोल्यूशन करे। स्पीकर इज़ नॉट प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द ऑफिस, ओके। उसकी मर्जी करेगी तो वो रिमूव करेगा अपने आप को, नहीं तो नहीं। 21 इज़ टॉकिंग अबाउट स्पेशल एड्रेस बाय द LG टू द LA। सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द LG? तो LG कब कब एड्रेस करेगा अपनी विधानसभा में, जो MLAs चूज़ किया उसने। अब LG जो है वो UT का, ठीक है, करता रहता होता है। तो LG को कब कब अपना एड्रेस करना है, जब वो जनरल, हर एक ईच जनरल इलेक्शन होंगे, 5 सालों में एक इलेक्शन होंगे, तो उसमें उसको अपना एड्रेस करना है, किसको, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को। और हर एक साल के पहले सत्र में, जब शुरू होता है ना साल हमारा, मार्च से शुरू होता है, उसमें सबसे पहला जो सत्र होगा वो एड्रेस कौन करेगा, मनोज सिन्हा। सो दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पेशल एड्रेस ऑफ LG। तो 21 बात करता है। अब 22 बात करता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल टू स्पीक टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग। अब मिनिस्टर्स कौन हो गए, यही MLAs हो गए, जो लेजिस्लेचर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सजेस्ट करते हैं कोई भी काम के लिए। एडवोकेट जनरल हो गया, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल हो गया सेंटर में, है ना, तो उसी तरह एडवोकेट जनरल जो स्टेट में या UT में होता है, उसको वो अगर चाहे तो उस प्रोसीडिंग्स में या सेशंस जो हो रहे हैं, जो लोग बिलों के बारे में बात कर रहे हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, तो उसमें अगर पार्ट लेना चाहे तो वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, ऐसा ये सेक्शन 22 कहता है। तो आज हम 22 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।